Namaste girls, welcome back to the inflation chapter. We were doing cost push inflation. हम लोग लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कर रहे थे. अगर लागतों में वृद्धि होती है और ये वृद्धि निरंतर रूप से होती है तो वो कीमतों में भी वृद्धि लाती है और इसी को लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं. If there is a persistent rise in cost which gets reflected in the constant rise in prices of objects or commodities, then that kind of inflation is known as cost push inflation. Cost push inflation क्या है, इसका अर्थ और ये किस तरह से घटती है, how does the phenomena work, इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में देखा है, राइट? आज हम लोग इसके कारणों पर चर्चा करेंगे. So let us come to the causes, the reasons because of which cost push inflation occurs. The first being the situation of the market. बाजार किस तरह की है? अगर बाजार में एकाधिकारी है या अल्पाधिकारी है तो लागतजन्य मुद्रास्फीति होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि एकाधिकार या अल्पाधिकार के प्रकार की मार्केट में या बाजार में उद्यमी का जो वस्तु होता है उस पर उद्यमी का पूरा नियंत्रण होता है, अर्थात वस्तु की कीमत पर उद्यमी का नियंत्रण होता है. उसकी कीमत कितनी रखी जाएगी वो उद्यमी तय करता है. पूर्ति को कंट्रोल करके यानी नियंत्रित करके उद्यमी उसकी कीमत को बढ़ा या घटा सकता है. तो अधिक लाभ कमाने की लालसा से कई बार उद्यमी जो है वो लाभ सीमाओं को बढ़ा देते हैं, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं. जब लाभ सीमाएं बढ़ने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली तो अंततः कीमतें भी ऊंची होंगी और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है. इसे लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति भी कहते हैं क्योंकि इसमें लाभ की सीमाओं को बढ़ाया जा रहा है. अर्थात अगर कोई भी अन्य लागत में वृद्धि ना हो, किसी भी साधनों की कीमत में वृद्धि ना हो, लेकिन कंपनी जो है, फर्म जो है, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए अपनी लाभ की सीमाओं को बढ़ा देता है, यानी उसकी असामान्य लाभ की जो मात्रा है उसको बढ़ाते चला जाता है. तो ऐसी स्थिति में वो अपनी पूर्ति को घटा देता है या पूर्ति को सीमित कर देता है और जो भी बाज़ार में उस वस्तु की मांग है उसके अनुसार जब पूर्ति गिरने लगती है या आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से गिराया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कीमतें बढ़ेंगी और इसकी बढ़ती हुई कीमतों के ज़रिए वो अपने लाभ को बढ़ाने लगता है. क्योंकि इस तरह की कीमतों में वृद्धि लाभ सीमाओं के बढ़ाने के कारण उत्पन्न होती है, इसीलिए इस तरह की मुद्रास्फीति को लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति भी कहा जाता है. So let us first understand why different kinds of markets, especially a monopoly market, brings on this phenomena of inflation. When we have a monopoly market, sometimes it also happens in an oligopolistic market, because when we talk of a collusive oligopolistic market, that means there is formation of cartels, then that cartel will behave as a monopoly. So it no longer becomes an oligopoly, it no longer remains an oligopoly, it becomes a monopolistic market or a monopoly. Single seller की तरह उन लोग behave करते हैं. So let's take a market which is a monopoly market, and in this monopoly market the industry itself is the firm. So it has a full control over its product and the market scenario. The producer or the monopoly can fix its price by altering or changing its amount of supply. With the given demand in the market, the supply will be decreased suddenly through artificial scarcity, and
it will result to an increase in price. Now, when does a monopolist do this? Firstly, when the prices of the inputs have risen, that is a special case, we've already discussed that. But when prices of inputs do not rise and there is no scarcity of inputs in the input or factor market, then we should assume that prices of the product should remain normal, should not increase or decrease, it should not fluctuate, right? But if the monopoly firm has a target of increasing profits, then what it does is it increases its profit margin. And to increase its profit margin, it has to increase the price of the product. This is how, when they keep on increasing the profit margin, the price continuously keeps on increasing over a long period of time. And this is when inflation sets in. Since inflation occurs because of an increase in the profit margin, this kind of cost push inflation is also referred to as profit push inflation. The profit margin is pushing up the prices. That is why it is known as profit push inflation. Let's take an example. एक उदाहरण से इसको समझते हैं. मान लीजिए कि एक अधिकार फर्म है, there's a monopoly firm, जिसकी उत्पाद की जो मांग की लोच है बाजार में वो स्थिर है, यानी बेलोचदार है. So the elasticity of the product in the market, the demand elasticity is zero. That means it's inelastic. People will buy the product at any price because it's kind of necessity. Let's take it that way. Okay. So per unit of the product is priced at 10 rupees. Fine. The entire cost of production pertaining to the input prices, साधनों पर जो खर्च हुआ है प्रति इकाई पर है 9 रुपया. तो मोनोपोली को कितना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है पर यूनिट पर? असामान्य लाभ कितना मिल रहा है? 1 रुपया प्रति इकाई. मोनोपोली इससे खुश नहीं है, उसको और कमाना है. अब वो क्या करेगा? वो एक टारगेट बना लेता है. एक साथ वो कीमत बढ़ा नहीं सकता है, वो काफ़ी दृष्टव्य हो जाएगा. तो वो क्या करता है, हर 6 महीने में या लॉट वाइज वो बढ़ा देता है कीमत. अब वो एक साथ 2 रुपये का ज़्यादा बढ़ाता है, उसका प्राइस कर देता है 13 रुपये. फिर एक साल बाद उसको रिवाइज्ड प्राइस में नेक्स्ट लॉट ऑफ प्रोडक्शन में उसको 15 रुपये कर देता है. तो कीमतें बढ़ रही हैं, जितना वो प्रॉफिट मार्जिन 2-2 रुपये करके बढ़ा रहा है. फाइन. लेकिन कीमतें जो हैं उस वस्तु की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं. अगर वो 1-1 रुपये का भी बढ़ाता तब भी वो 11 रुपये, फिर 12 रुपये, फिर 13 रुपये, तो वो धीरे धीरे कमोडिटी प्राइस बढ़ती ही चली जाती. और ये कीमत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मोनोपोली को अपना प्रॉफिट यानी लाभ बढ़ाना है, लाभ की सीमा को बढ़ाना है. तो लाभ सीमाओं को बढ़ाने के कारण इस तरह की इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही है. कच्चे माल व पेट्रोलियम तेल की कीमतों में वृद्धि भी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को जन्म देती है. कई बार जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है, और ख़ास करके ये देखने को मिलता है जब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, जिसको हम ओपेक भी कहते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जो एक कंट्रोल्ड यूनिट प्राइस होती है, यानी उन सब की जो प्राइस होती है एक साथ मिला के जो लोग बेचते हैं एक ही कीमत पर, वो कीमत अगर बढ़ा दिया जाता है तो विश्व के हर एक देश इससे अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है. जब से ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस यानी पेट्रोल उत्पादन करने वाले देश ने एक साथ मिलकर एकजुट होकर एक संगठन बना लिया है, तो वो आज विश्व के 80% देशों की ऑयल यानी तेल के उत्पादन को नियंत्रण करते हैं. तेल को बेचना, खरीदना विश्व स्तर पर पूरा यही 80 से 85% का इस व्यापार को वो कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करते हैं.
अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है और उसके कारण उत्पादन की लागत मोस्ट यानी अधिकतम उत्पादन क्षेत्र में बढ़ चुकी है, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है और कई क्षेत्रों में, कई फर्म्स में, स्पेशली सेकेंडरी यानी द्वितीय क्षेत्रों की फर्म्स में ऑयल इनपुट की तरह भी यूज़ होती है, यानी साधन की तरह भी इस्तेमाल की जाती है क्रूड ऑयल या उसके उप पदार्थ। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं हिस्ट्री में तो 1973 में, ये समय को अगर हम ध्यान में रखें और फिर 1979 का अगर समय देखें तो भयंकर मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हुई थी। 1979 के पश्चात भी 1990 तक या 1990 के अंत में इराक द्वारा युद्ध के समय काफ़ी ऊंची कीमत हो गई थी कि क्रूड ऑयल की लगभग $75 प्रति बैरल से अधिक में पेट्रोल बेचा जाता था। और जून 2006 में सरकार द्वारा पेट्रोलियम तेल की कीमतों में वृद्धि से लागतों में वृद्धि कीमतों की बढ़ को बढ़ाते चली गई। लगातार सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ती चली गई, कोई फ्लक्चुएशन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, घटने की कोई गुंजाइश नहीं रही। तो हम देखेंगे कि इन अ स्पैन ऑफ अराउंड फ्रॉम 73 टू 93 यानी 20 ईयर्स, 2 दशकों तक कोई कमी नहीं आई थी। प्राइसेस वर कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग और 2006 तक तो एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ इन प्राइस लेवल देखा गया अधिकतम देशों में। तो इस तरह की जो मुद्रास्फीति विश्व के अधिकतम देशों को सहना पड़ा या इससे गुजरना पड़ा, ये था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि सिर्फ एक पदार्थ की कीमत बढ़ी थी और वो क्या पदार्थ है? क्रूड ऑयल। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। अब आते हैं दूसरे कारण पर जिसको हम कहते हैं वेज इन्फ्लेशन अर्थात मजदूरी मुद्रास्फीति। जब मजदूरी दर बढ़ती है किसी भी कारण से, खास करके ये कारण होता है मज़दूरों की मांग, जिसको कभी कभी पूरा भी करना होता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होता है, तो इससे भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। और इस तरह की मुद्रास्फीति को कहा जाता है मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति। सो व्हेन wages are increased, and wages are a part of cost of production, we know that. So an increase in wages increases the cost of production, and when cost of production increases, price of the goods automatically increase. If this goes on for a long period of time, the increment in price, it leads to inflation and cost push inflation. Since this kind of an inflation occurs due to raise in wages of the laborers, so it is also known as wage induced inflation or wage push inflation. क्योंकि ये मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के कारण इस तरह की मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, तो इसके लिए इसको मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। जब अर्थव्यवस्था में कामकाज की व्यवस्था बड़ी अच्छी हो, उद्यमी बहुत अधिक लाभ कमा रहे हों और काफ़ी अच्छी बिक्री भी हो रही है, यानी डिमांड भी है, मांग भी है, बिक्री भी है, सेल्स भी है, तो मज़दूर वेतन या मज़दूरी को बढ़ाने की मांग करते हैं। ऐसे में उद्यमी भी मज़दूर को मज़दूरी बढ़ाने में ज़्यादा झिझकते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपना उत्पादन कायम रखना है, मेंटेन करना है। वो लॉकआउट, स्ट्राइक या कोई झमेला नहीं चाहते हैं। वो उत्पादन की गति को धीमी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ार में मांग है, बिक्री अच्छी है, वो अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो कोई एक बात में इन अ वेरी शॉर्ट लाइन, उद्यमी कोई झंझट नहीं चाहता है। तो उन्हें लगता है कि अगर हम मज़दूरी थोड़ा सा बढ़ा दें तो ईज़िली, स्मूथली
बिना किसी रुकावट के और बिना किसी झिझक के काम बढ़ता चला जाएगा और उनका उद्योग अच्छा चलने लगेगा या फर्म अच्छी तरह से चलेगा। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फर्म, उद्यमी इस मांग पर राज़ी हो जाते हैं। हो सकता है कि वो पूरी मांग को ना ले ले या पूरी मांग पर वो सहमत ना हो, लेकिन कुछ हद तक वो मजदूरी दर को बढ़ा देते हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स इज वेजेस ऑफ द लेबर्स वर्कर्स इंक्रीज। ऐसा करने में क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि मज़दूरों को वे अपनी वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर उपभोक्ताओं से वो वसूल कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मज़दूर भी खुश होंगे तो वो उत्पादकता उनकी गिरेगी नहीं, और उत्पादकता नहीं गिरेगी तो उनका उत्पादन भी अच्छा होगा। उद्यमी जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जो भी ज़्यादा मजदूरी दर लगी हो या ज़्यादा मजदूरी उनको चुकाना पड़ रहा है मज़दूरों को, उसकी जो बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी लागत है वो उपभोक्ताओं से वो वसूल लेंगे। इसके लिए वो क्या करते हैं, वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देते हैं। तो मजदूरी में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है, लागत में वृद्धि होती है जो अल्टीमेटली अंततः कीमतों को बढ़ा देती है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसलिए भी होता है क्योंकि मजदूरी में वृद्धि हुई है। तीसरा कारण होता है प्राकृतिक दुर्योग यानी नेचुरल डिजास्टर्स। कई बार कुछ ऐसे दुर्घटनाएं होते हैं जिसे हम सोच नहीं पाते हैं या जिसका अनुमान इंसान नहीं लगा पाता है। These are not market conditions, but they are conditions of the world, like earthquake, flood, famine, fire. कई ऐसे प्राकृतिक दुर्योग होते हैं या घटनाएं होती हैं जो आकस्मिक होते हैं, and they happen suddenly. No contingent planning or no estimations can stop them. इसके लिए कोई कुछ अनुमान नहीं लगा पाता है, वो अचानक से हो जाते हैं, जैसे कि भूमिकंप या आप कह सकते हैं बाढ़, भुखमरी या कोई बहुत बड़ी महामारी जो अचानक से हो जाए और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को या किसी एक क्षेत्र को, किसी एक स्टेट को या कंट्री को प्रभावित कर दे और प्रतिकूल रूप से इसका प्रभाव पड़े। ऐसे में जो रिसोर्सेज होते हैं या साधन होते हैं कई बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो उद्योग है उसको क्षति पहुंच जाती है, तरह तरह के क्षति हो सकते हैं, जिसके कारण से जो लागतें हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी कि साधनों की कमी होने लगती है और लागत बढ़ जाती है। कई बार रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण की भी लागत लगती है, और जो लागतों में वृद्धि होती है वो कीमतों में भी वृद्धि लाती है। So many a times what happens is that because of these natural disasters, there's a loss of natural resource. There's a loss of inputs of production. So the raw material scarcity leads to high prices of raw materials, thereby resulting to a high rise in prices of the goods. In some cases, reconstruction of the firms also lead to higher cost of production. Though it is a one-time replacement cost or one-time overhead cost, but still it adds to the cost of production of the firm for that financial year. So ultimately what happens is the firm has to recover these costs somehow, anyhow. So what it does is it increases the price of the product it is producing. And this rise in price does not come back. It does not lower down at any level. It always remains high. And it goes up higher if this disaster or the setback is for a longer duration of time. Greater the disaster, greater the rise in price would be. तो अगर जो अवरोध है या प्राकृतिक दुर्घटना है उसकी मात्रा ज़्यादा बड़ी होगी तो कीमतों में भी उछाल उतनी ही बड़ी आएगी. It depends on how much of
how well the disaster management is being done by that firm, by that sector, or by that economy. It all depends on it. But eventually what will happen is it will lead to a price rise and thus inflation. This is what keeps on happening in countries like Japan and America, where hurricanes and earthquakes and jungle fires, they take place and they destroy a lot of natural resources. जापान, अमेरिका तथा ऐसे देशों में अक्सर भूकंप, जंगल में आग या हरिकेन की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती रहती हैं, जिससे काफ़ी सारी प्राकृतिक जो साधन हैं उनका क्षतिग्रस्तता होती है, और उनकी क्षति के कारण उनकी कीमतों में भी वृद्धि आने लगती है और अंततः मुद्रास्फीति जन्म लेती है। आइए चौथे कारण पर चलते हैं। द फोर्थ रीज़न इज़ गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। सरकार किन चीज़ों पर कर लगा रही है, कितना कर लगा रही है, इस पर बहुत सारा चीज़ निर्भर करता है, और इस पर खास करके निर्भर करती है कि उन वस्तुओं की कीमत कितनी बढ़ेगी और वो वस्तु किसकी प्रयोग की है। अक्सर सरकार की ये कोशिश रहती है कि अपनी जनता के कल्याण के लिए उन वस्तुओं पर अधिक कर लगाए जिनकी उपभोग से जनता को हानि होती है, जैसे कि सिगरेट हो या अल्कोहल हो। लेकिन कई देशों में ये देखा गया है कि इसका जो परिणाम होता है ये सोचा हुआ परिणाम से बिल्कुल अलग होता है या अनुमानित परिणाम से बिल्कुल अलग होता है। यूजुअली a tax when applied on products which are harmful for the society in general is aimed to lower down the consumption and production of such goods. But what happens is just the opposite. Instead of stopping this unhealthy practice and the production of such unhealthy objects, people are more attracted to it because of their addictions. A tax on the production increases their price. And since their demand is quite inelastic because of addiction issues, people spend most of their part of their income on buying these products. So it creates holistically a non-welfare atmosphere. जब सरकार की ओर से अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से ऐसी वस्तुओं पर कर लगाई जाती है या करों को बढ़ा दिया जाता है जो कि जन कल्याण के लिए हानिकारक है, जैसे मैंने सिगरेट, अल्कोहल, गुटखा, ये सब है, तो तब क्या होता है कि सरकार ने तो इस उद्देश्य से लगाया कि इसका उत्पादन भी कम होगा और इसकी उपभोग भी कम होगी। लेकिन इसका उल्टा ही परिणाम मिलता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं के प्रति लोगों की आदत बन जाती है तो मांग कम नहीं होती है। प्राइस यानी कीमत बढ़ने के साथ साथ मांग उतनी ही बरकरार रह जाती है जितना कि पहले थी। और उत्पादक क्या करते हैं? उत्पादक ऊंची कीमतों पर इसको बेचने लगते हैं ताकि जो टैक्स देना पड़ा है वो उपभोक्ताओं से वसूल लिया जाए, और इस कारण इन वस्तुओं की कीमत बढ़ती चली जाती है और ऐसे क्षेत्रों में मुद्रास्फीति आती है। In such cases, these kind of inflations are created because of tax regulations. Okay? अंत में आते हैं एक्सचेंज रेट्स, जो कि हमारा पांचवा कारण है लागतजन्य मुद्रास्फीति की। The fifth cause of cost push inflation is exchange rates. लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण रुपया का अवमूल्यन होता है। So another cause being the depreciation or devaluation of currency. अवमूल्यन के कारण विदेशों से आयात किए जाने वाले पूंजीगत पदार्थ तथा कच्चा माल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिनसे उनसे उत्पादित वस्तुओं की लागत में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप उन पदार्थों की कीमत बढ़ जाती है जिनकी आगतों में यह
आयात की हुई वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं. So when there is a devaluation or depreciation of currency in a country, the imports become costlier. And if the country is importing raw materials from other countries, then they have to buy these raw materials at higher prices. What happens then is these raw materials, which are inputs to some of the industries, increase the cost of production of those industries and firms. And in a chain reaction, the cost of production being increased, the prices for the products they help to produce increases, right? इसी प्रकार यदि बहुत से औद्योगिक पदार्थ पर उत्पादन कर एवं बिक्री कर बढ़ा दिया जाता है तो वो भी उत्पादन लागत में वृद्धि की तरह पूर्ति को कम कर देती है. और ये दोनों मिलाकर जो है कई बार कीमतों को बढ़ा देती है. सो इफ़ an imported good is already costly and there is also an excise duty or you can say customs duty on it which is imposed, then it further increases the cost of the input. A further increase in the cost of the input to stop imports does not actually stop imports or lower down imports, it lowers down the supply of the country. And when the supply is lowered, the price is attacked in twofold kind. तो कीमतों में दो तरफा वृद्धि होती है. कैसे? एक तो इम्पोर्टेड गुड्स की कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट ऊंची है, एक्साइज ड्यूटी या जो बिक्री कर है, सेल्स टैक्स लगा दिया गया है तो सप्लाई भी घट रही है, राइट? तो दोनों तरह से फिर वस्तु की कीमत मार्केट में बढ़ जाती है. So in both ways, the supply getting reduced and the price of the imported raw material becoming higher, cost of production being higher, the price of the good increases manifold times, leading to cost push inflation. So these were the causes of cost push inflation. आशा करती हूँ आपको समझ में आया है. If you have any doubts, contact me on my WhatsApp. Okay, take care.